آغاز میں بات کریں گے کچھ موسم کی، تو آپ بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں سورج کی کرنوں میں شدت آنے لگی ہے، گرمی کی لہر برقرار ہے، شہر کا کم از کم ٹمپریچر 21 تک جانے کا بے امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا کے شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ موسم دن بدن مزید جو ہے وہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سورج جو ہے وہ دوپہر کے اوقات میں شہریوں کو اپنی گرم ہونے کا احساس جو ہے وہ کروا رہا ہے، اور گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جبکہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جا سکتا ہے، جبکہ اگر آج کے موسم کی درجہ حرارت کی بات کرتا چلوں تو محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی لاہور کا جو صبح سویرے درجہ حرارت ہے وہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 82% تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف لاہور میں ہوائیں چلنا بھی اب جو ہے وہ بند ہو چکی ہیں، اور جو گرمی کی شدت ہے، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور میں آئندہ آنے والے چند دنوں میں گرمی کی لہر جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے شہریوں کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جہاں پر موسم جو ہے وہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے اور گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہیں پر جو فضائی آلودگی ہے اس میں لاہور جو ہے وہ آج پھر پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے، جس کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 330 سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر چکا ہے۔ دوسری طرف اس بدلتے موسم کے بعد جو بارش ہے اس کے امکانات جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے لاہور میں آئندہ آنے والے چند ہفتے تک بھی جو ہے وہ بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زین علی موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کچھ مہنگائی کی، تو آپ بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی معافی کا راز برقرار ہے۔ مارکیٹ میں مرغی گوشت کی فی کلو قیمت 497 روپے پر برقرار ہے۔ فارم میں انڈوں کی فی درجن قیمت 200 روپے مقرر۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 5880 روپے میں دستیاب ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی معافی کا راز برقرار ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیں عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقمہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور سرکاری ریٹ میں قیمت جو ہے 497 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں جو صافی برائلر گوشت ہے وہ 570 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور بعض مقامات پر 580 روپے فی کلو تک بھی صافی گوشت کے نام پر شہریوں سے جو ہے وصول کیے جا رہے ہیں، اور جو بون لیس برائلر ہے وہ 850 سے 900 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو زندہ برائلر کی قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے تو فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 315 روپے مقرر کیا گیا، تاہم جو زندہ برائلر کی سپلائی کی جا رہی ہے 315 کے برعکس 320 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 329 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت 343 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اور انڈے جو ہے وہ 200 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھے گئے ہیں، اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 5880 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر گوشت کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، کیونکہ سرکاری ریٹ میں 497 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہیں، تاہم دکاندار جو ہیں وہ صافی برائلر گوشت فروخت کر رہے ہیں اور 570 سے 580 روپے فی کلو تک جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب پولیس کے بعد ٹریفک پولیس کی یونیفارم بھی تبدیل۔ سی ٹی او لاہور نے دیگر افسران کے ساتھ نئی یونیفارم پہن کر افتتاح کر دیا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس آج سے نئی یونیفارم کے ساتھ فرائض انجام دے گی۔ اس بارے رپورٹ کریں۔ پولیس لاہور کی نئی یونیفارم کی لانچنگ تقریب جیل روڈ پر ٹریفک پولیس کے آبشار آفس میں منعقد ہوئی۔ سی ٹی او ڈاکٹر محمد عطر وحید اور دیگر سینئر افسران نے ٹریفک وارڈنز کے ہمراہ نئی یونیفارم زیبتن کی۔ سٹی ٹریفک پولیس کا تمام عملہ آج سے لاہور کی شاہراہوں پر نئے یونیفارم کے ساتھ فرائض انجام دے گا۔ سی ٹی او عطر وحید کا کہنا ہے جدید اور منفرد یونیفارم وارڈنز کی سہولت کے ساتھ شہریوں کے لیے بھی خوشگوار اور عوام دوست تاثر
पैदा करेगी। गर्मियों में ट्रैफिक वार्डन्स नेवी ब्लू पैंट, सफेद शर्ट और रिफ्लेक्टिव जैकेट, जबकि सर्दियों में नेवी ब्लू जर्सी का इस्तेमाल करेंगे। लाइसेंसिंग सेंटर्स और दफातर में तैनात मर्दो खवातीन अमला नेवी ब्लू पैंट, कोट, टाई, सफेद शर्ट और पी कैप के साथ फराइज अंजाम देगा। नई यूनिफॉर्म का मकसद ट्रैफिक फोर्स में नए जज्बे और पेशा वराना वकार को फरोग देना है। ब्लू कलर दैट स्टैंड्स फॉर पुलिस। इसके अंदर जो ऑफिसेज के लिए अलग यूनिफॉर्म बनाई, जिस तरह ये मैंने पहनी हुई है, फील्ड स्टाफ के लिए अलग बनाई, समर और विंटर के लिए अलग अलग बनाई। सीटीओ लाहौर का मजीद कहना था, नई यूनिफॉर्म के साथ ट्रैफिक पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता गाड़ियां भी फराहम की जा रही हैं। मल्टी ऑप्शंस पर मुश्तमिल वन ऐप का आगाज भी लाहौर में कर दिया गया है। वन ऐप के जरिए ट्रैफिक वार्डन्स एक ही क्लिक पर मुतअद्दिद कार्रवाइयां फौरी अंजाम दे सकेंगे। 16 गाड़ियों के हमने ऑर्डर दे दिए हैं, 50 के करीब और आ रही हैं। हमारे पास ट्रैफिक पुलिस की कोई भी पुरानी गाड़ी नहीं होगी और ज़्यादातर इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। गो ग्रीन जिसको हम कहते हैं, पूरे लाहौर में वन ऐप को लॉन्च कर दिया गया है और वन ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें तमाम अदारों का डाटा है। अब अगर एक वायलेटर को जब रोका जाएगा, अगर खुदा न खास्ता उसके कोई ई चलान पेंडिंग है, अगर एक्साइज की उसके ड्यूज़ पेंडिंग हैं और अगर गाड़ी किसी मुकदमे में मतलूब है, अगर वो शख्स किसी FIR में मतलूब है, ये सारे का सारा एक डाटा, इंटीग्रेटेड डाटा, इसको वन ऐप में इंस्टॉल कर दिया गया है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब में ट्रैफिक पुलिस ने इस बात का अज़म किया कि खवातीन समेत हर शहरी से इज्जत, एहतराम और खुश इखलाकी के साथ पेश आया जाए, ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद और ताउन को फ़रोग दिया जा सके। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में खित्ते में कशीदगी और उसके मुमकिन माशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इक़दामात का नफाज़ भी नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान तमाम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए तमाम ज़रूरी फ़ैसले भी करेंगे। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। असरात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान को तवानाई की फ्राहमी और आलमी मंडियों में कीमतों के उतार चढ़ाव पर असरात मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हालिया सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वज़रा और सरकारी मुलाजमीन को सादगी और कफ़ायत शारी इख्तियार करनी होगी। जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मजीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत अवाम और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने पेशी इंतजाम कर रखे हैं। कफ़ायत शारी के हवाले से हदायत सनत और ज़राई शोबे पर लागू नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुराद याफ्ता तबकात को ज़रूरी एडजस्टमेंट्स बर्दाश्त करने में मिसाल कायम करनी चाहिए। इजलास को बताया गया कि कफ़ायत शारी और बचत के हवाले से हतमी लाए अमल का बाज़ाब्ता ऐलान सोमवार को किया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, अवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक, अता तारर, मुसद्दिक मलिक और मावन खसूसी हारून अख्तर भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात हुई। जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया गया है। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायज़ा भी लिया गया। जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मरियम नवाज़ का ज़रिए इस्तेमाल के लिए डीजल की फ्राहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम की मुलाकात हुई है। अली परवेज़ मलिक की मुलाकात, जंग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर, पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, डिमांड और ज़खायर का जायजा लिया गया। आलमी बहरान के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायत के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर करार। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला ने ज़राई इस्तेमाल के लिए डीजल की फराहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की मॉनिटरिंग पर इत्तफ़ाक़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। तमाम अज़लां में इंतज़ामिया को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। पैरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सूरत हाल की निगरानी और कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, अवाम को पेट्रोल पंप्स पर लाइनों में न लगना पड़े, किसी को मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद पर पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि छुट्टी के रोज़ शहरियों का वहदत रोड
सहूलत बाजार का रुख। सहूलत बाजार में अशिया खुरनोश सस्ते दामों दस्तयाब हैं। अवाम कहते हैं बाजार में हफ्तावार खरीदारी के लिए आते हैं। शहरियों ने कुछ अशिया के गैर मियारी होने का शिकवा भी किया है। सस्ती अशिया खुरनोश की तलाश शहरी छुट्टी के रोज सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी पहुंचे। सहूलत बाजार में अशिया खुरनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब। शहरियों का कहना है सहूलत बाजार में अशिया सस्ती मिल जाती हैं, अलबत्ता कुछ अशिया के मयार पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फ्रूट वगैरह उसमें खजूरें हैं, दूसरी बनाना है, वो थोड़ा सा इन्होंने रेट किए में कम। बाहर 200 रुपये, मेरे यहाँ 180 रुपये। 2 नंबर 1 नंबर केला जो है 200-250 रुपये, 300 रुपये, इसी तरह का रेट है। अच्छी चीज़ कर रहा है। हर हफ्ते आते हैं इधर सामान लेने के लिए, हमें सही मिल जाता है, दे के लेते हैं। माशाल्लाह सारे कोऑपरेटिव हैं, कोई शिकायत भी हो उसी टाइम करते हैं। ये हमारी वहदत रोड सहूलत बाजार आने वालों में ज्यादातर तादाद खवातीन और बच्चों की थी। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद किया गया। पंजाब और KP के मुख्तलिफ कैंपसेस में होने वाले टेस्ट में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। टेस्ट में नुमाया नंबर हासिल करने वाले 3000 तलबा को 100% स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी, जबकि दीगर कॉलेजेस के 80% और 60 नंबर्स वाले तलबा को 25% स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर तमाम स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का इनेकाद किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कैंपसेस में होने वाले टेस्ट में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। 100 MCQs पर मुश्तमिल इम्तिहान का मकसद मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला टेस्टों के लिए तलबा की तैयारी का जायजा लेना था। टेस्ट में नुमाया नंबर हासिल करने वाले 3000 तलबा को 100% स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, जबकि दीगर कॉलेजेस के 80% और जायद नंबर्स वाले तलबा को 25% स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। टेस्ट में कामयाब होने वाले तलबा के लिए 15% स्कॉलरशिप मुख्तस की गई हैं। सीनियर प्रिंसिपल सरवत हसन और स्टेप कोऑर्डिनेटर गुलबर्ग 10 हाजरा मोइन ने कहा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी मुनाकिद किया जा रहा है। टेस्ट के जरिए तलबा की तालीमी सलाहियतों और एंट्री टेस्ट की तैयारी का जायजा लिया जाता है। स्टेप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट अपने आप को जज कर सके, अपने आप को असेस कर सके। तो इस टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे को ये पता चल जाए कि वो एंट्री टेस्ट की तैयारी में कहाँ स्टैंड करता है। एक तो पहली बात ये, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यानी पूरे पंजाब भर में और KPK में हदफ स्कूल कॉलेजेस के अंडर और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंडर ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त साइमल्टेनियसली पूरे ये टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें जो मेरिट के ऊपर हमारे बच्चे आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट है जिसको हम टोटली एंट्री टेस्ट फ्री करवाएंगे। उसके लिए उसको पूरा 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है इसमें शमूलियत हासिल की और इंशाल्लाह हम आने वाले भी ईयर्स में इससे भी ज़्यादा बच्चों के लिए इवेंट्स अरेंज करेंगे और एक बिग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। और ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का बेसिकली मकसद वो स्टूडेंट्स का भी है, ये रखा जाता है वो बच्चे जो एक हाई स्कोर में नहीं होते, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर अपने टेस्ट की बेस पर एक अच्छी मार्क्स गेन करने पे, यानी उनको एक हमें डिस्काउंट स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं जिसमें आउटसाइडर भी अवेलेबल हैं। यानी ये एक बिग अपॉर्चुनिटी उन पेरेंट्स के लिए भी जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते फुल। टेस्ट में शरीक तलबा ने कहा कि स्टेप प्रोग्राम के तहत एंट्री टेस्ट की तैयारी का मयार बहुत बेहतर है। आज का पेपर अच्छा हुआ, उम्मीद है कि हम बेहतर कारकर्दगी दिखाकर स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब होंगे। आज मेरा ECAT का टेस्ट था, सेल्फ असेसमेंट, और अकॉर्डिंग टू मी हमारे कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को एंट्री टेस्ट से पहले इस तरह के प्री टेस्ट लिए जा रहे हैं। इससे हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और हमें पता है कि हमने फर्दर कैसे अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, और काफ़ी ईजी था और आई होप कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। इस तरह के टेस्ट जो होते हैं ना वो आपके आगे जाके इवन सेकेंड ईयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और उसके बाद ये कि पंजाब कॉलेज हमेशा से ही बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपरेशन करवाता है हर टेस्ट की, इवन वो MD-CAT हो, इवन वो ECAT हो, इवन वो आपके यूनिवर्सिटी टेस्ट हों, तो वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाता है और ये चीज़ें आपके आगे जाके रियली हेल्पफुल, दे आर रियली हेल्पफुल। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया का कहना है कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट तलबा को मुस्तकबिल में बेहतर मनसूबाबंदी और तालीम जारी रखने के लिए सलाहियतों को समझने में मदद देते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, ईद की शॉपिंग के लिए ख़वातीन ने रमज़ान बाज़ार हरबंसपुरा का रुख कर लिया। बाज़ार में ख़वातीन की बड़ी तादाद ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। कोई कपड़ों के स्टॉल्स पर अपनी पसंद के मलबूसान तलाश कर रही हैं, तो कोई ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों के स्टॉल्स पर ख़रीदारी में मगन दिखाई देती हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद।
ईद आई खुशियों के संग खातीन ने ईद की शॉपिंग के लिए रमजान बाजार हरबंसपुरा का रुख कर लिया। कोई अपनी पसंद के रंग बिरंगे मलबूसात तलाश कर रही है तो कोई ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खरीदारी में मगन। खातीन का कहना है ईद में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा, इसलिए बच्चों और अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने की कोशिश कर रही हैं। बाजार में बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी है। बच्चे भी जूते और ईद के कपड़े खरीदने की जिद करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अशिया जरूरिया और दीगर सामान की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खातीन का कहना है पेट्रोल महंगा होने से दीगर चीजें भी महंगी हो गई हैं। इसके बावजूद कोशिश कर रही हैं कि अपने बजट के मुताबिक ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ली जाए। पेट्रोल के महंगे हो जाने की वजह से हम सब बहुत मुतासिर हुए हैं, पूरा मुल्क सभी। और इसकी वजह यह है कि हम लोग अपनी तो शॉपिंग के बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों की शॉपिंग तो करनी है। ईद की तैयारियां बड़े जोशो खरोश से करने की था, लेकिन अभी एकदम से मुल्की हालात और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की वजह से ना हर चीज़ ही एक रेप चेंज आ गया है। जो एक्सपेक्ट किया था उससे कोई ना 20-30% अब बढ़ के ही है, यहाँ पे देखने को मिला है। 15 रमज़ान के बाद अब ईद की तैयारी की तरफ है, कर तो रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा करने का सोचा था अब रेट्स की वजह से थोड़ा कम करना पड़ रहा है। रमजान बाजार हरबंसपुरा में इन दिनों खूब गहमा गहमी देखने में आ रही है और लोग ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए भरपूर खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर के लिए मुल्क भर में खरीदारी अरूज पर है। लाहौर की किसी मार्केट में धरने की जगह नहीं है और दुकानदार भी मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं और कोई किसी से पूछने वाला नहीं। अनारकली बाजार में भी खवातीन की बड़ी तादाद की ईद की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यासीन। मद में एक अशरा बाकी है और शहरी बाजारों में खरीदारी के लिए जोक दर जोक पहुंच रहे हैं। अनारकली बाजार में खरीदारी के लिए आने वालों का गैर मामूली रश बढ़ गया। सबसे ज्यादा कपड़ों की खरीदारी हो रही है और खरीदारी में खवातीन मर्दों से बहुत आगे हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों के लिए खरीदारी हो रही है। बच्चे भी अपने पसंद के मलबूसात और जूते खरीदने की जिद करते नजर आते हैं। ईद शॉपिंग करने वालों का कहना है महंगाई बहुत ज्यादा है, नए कपड़े गरीबों की कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए। चीजों के रेट पहले से 2 गुना हो गए हैं। शायद तो ये पेट्रोल बढ़ने की वजह से है या वैसे ही तो आम चीज़ें जो है आम बंदे की पहुंच से बाहर हैं। इस साल महंगाई बहुत ज़्यादा ही है और गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। तो पिछले साल जो चीज़ हमारे पास 1500-2000 की बिक रही थी, इस साल 3000-4000 के तक पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने बढ़ती महंगाई पर पेट्रोल का काम किया और कीमतें आसमान को छूने से गरीब महज विंडो शॉपिंग तक महदूद होकर रह गए हैं। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, ईद की तैयारियों में सबसे बड़ा चैलेंज दर्जी की बर वक्त बुकिंग है और हर दुकान पर बुकिंग बंद है कि बोर्ड हवेसा भी किए गए हैं। ख़वातीन ईद का जोड़ा सिलवाने के लिए जतन करती दिखाई दे रही हैं। दर्जियों ने भी सिलाई के दाम बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे सामिया। है लेकिन बुकिंग बंद है का जुमला ख़वातीन पर गरां गुजर रहा है। कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जी की दस्तयाबी ख़वातीन के लिए चैलेंज बन गई है। अगर कोई दर्जी सूट की सिलाई की हामी भर ले तो दाम अपनी मर्जी के वसूल कर रहा है। सादा सूट की सिलाई 2000 जबकि फैंसी सूट की सिलाई 4000 रुपए तक ली जा रही है। ख़वातीन का कहना है इतने महंगे कपड़े खरीदे हैं, दर्जी या तो बुकिंग नहीं ले रहे या रेट दुगना ले रहे हैं। मेरा टेलर इतना तंग कर रहा है, सुबह शाम मैं उसको कॉल करती हूँ, इफ्तारी की भी लालच देती हूँ, इफ्तारी कराऊंगी तब भी नहीं आता। बस इसीलिए हम तंग हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं। बाकी वी आर एंजॉयिंग, अल्लाह आसानी रखे सबके लिए। कपड़े लेने आए हैं, स्टिच भी करवाएंगे, लेसेस भी लेंगे और ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। आपको पता है कोई मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे अपने कपड़े स्टिच करवाने आई हूँ, लेकिन कीमतें अल्लाह माफ़ करे इतनी ज़्यादा, इनको रमज़ान का भी कोई ख्याल नहीं है। इनसे मिन्नतें कर करके कह रहे हैं कि ईद से पहले हमें कपड़े सी के दे दो, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा बता रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। लेकिन ज़ाहिर बात है ईद है तो शॉपिंग तो करनी है और सब कुछ स्टिच करवाना भी है, तो करवा रहे हैं। दर्जी कहते हैं ईद के अयाम में काम बहुत बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए रेट्स बढ़ाना मजबूरी है। रेट्स क्या, काम का रश है, काम बड़ा मुश्किल है। डिज़ाइनर सूट है, सारा दिन एक सूट सेटिंग करने में गुजर जाता है। पैच बड़े हैं तो इसलिए काम उतना लिया है जितना कर सकते हैं कि चांद रात तक जो दे दें काम उनको करके ना। कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर अपने सूट लेके आ रहे हैं लेकिन टाइम पर नहीं आ रहे, इसलिए हमारे पास बुकिंग जितनी थी हमने उतनी कर ली हुई है। इसके अलावा हमारे पास बुकिंग की गुंजाइश नहीं है
کہ ہم کسٹمر کے سوٹ بنا سکیں. جتنے بنا سکتے ہیں عزت سے بنائیں گے اتنا کام کریں گے. اس کے علاوہ بکنگ بالکل بند ہے. خواتین عید کے لیے کپڑوں کی سلائی کے لیے ٹیلرنگ شاپس کے چکر لگانے پر مجبور ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مناسب دام میں کپڑوں کی اچھی سلائی کا بندوبست ہو جائے. عید قریب آتے ہی درزیوں کے نخرے عروج پر ہیں، تبھی تو قیمتیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ بکنگ بند کے بورڈ بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں. کیمرہ مین عدنان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور.